Good evening, everyone. Welcome back in our today's topic. Heartily welcome to the today's presentation participation and this topics. Myself, Mrs. Raj Jaiswal, representing Rajlakshmi Solution Private Limited. Before moving on today's topic, let's take an introduction of Rajlakshmi Solution Private Limited. Rajlakshmi Solution Private Limited company करती क्या है and which type of services Rajlakshmi Solution is providing. The first is Tally Prime. Tally Prime is a complete business manufacturing software for small and medium businesses. It helps to maintain accounting, inventory, banking and taxation, payroll and much more things. सारी चीजें हम इसमें maintain कर सकते हैं accounts के through. And the second is SAP. It's a single affordable solution to manage our entire business from each and everything, accounting till CRM software in orders to provide clear visibility into entire business process. For example, SAP अगर हमने अपनी कंपनी में लगा लिया तो हमें अदर किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है. एंड द थर्ड थिंग इज Bittrex 24. Bittrex 24 CRM is a CRM software. We can maintain our leads, deal, task and projects management, attendance sheet, internal communication, marketing activities, all types of things we can maintain in Bittrex CRM softwares. And the fourth one is Skill India. Skill India, it's related for the education. बच्चों को जहाँ पे एजुकेशन किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, उनके जॉब्स के लेके उनके सिक्योरिटीज, उनके फ्यूचर्स के बारे में उनको अपडेट किया जाता है. ये है राजलक्ष्मी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के इंट्रोडक्शन, जहां पर हम इतने सारी चीजें करते हैं. इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी टाइप्स का कोई भी इंटीग्रेशन करवाना है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करवाना है, बनवाना है, सो वी आर ओपन फॉर दैट. अगर किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट्स हो, वी कैन कनेक्ट फॉर दैट. लेट्स मूव अहेड फॉर द टुडेज टॉपिक, दैट इज हाउसिंग सोसाइटी. हाउसिंग सोसाइटी इज अ सोसाइटी सॉफ्टवेयर वी कैन जहां पर हम अपने हाउसिंग की पूरी डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं. So let's start for this. The first one is Mrs. Anam. Are you there? Yes, ma'am. Yeah. Welcome in the today's topic session. And second is Kanika. Are you there? Yes, I'm here. Yeah. Thank you both of you, and heartily welcome in the today's topic. Let's start the sessions, and the next move on for the introduce our new resource person, Mr. Bhagwati. Sir, are you there? Yes, I am available. Hi, good evening, everyone. I am Bhagwati. Good evening, sir. Hello, everyone. Let's start the today's topic session. Anam, you can start the session. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, am I audible? Yeah, Anam. Okay, ma'am. Hello, all. Very good afternoon and a very warm welcome to one and all present here. Myself, Miss Anam Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Ma'am, next slide please. On behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions Private Limited, it's my pleasure to welcome all the participants present here. Ma'am, next slide please. Okay, so coming towards today's very interesting topic, that is housing society accounting in Tally Prime. Basically, housing society accounting is introduced for all types of societies. By the help of housing society accounting features in Tally Prime, you can simply maintain society's member information and as well as the society's overall details. So moving towards the introduction part of housing society accounting module in Tally Prime. Ma'am, next slide please. The solution is designed for housing societies to manage their accounts. This solution can be used by both types of society, that is commercial or non-commercial. To update their accounts, GST tax are also updated along with the bills. Housing society accounting module basically societies के accounts manage and maintain करने के लिए बनाया गया है. इतना ही नहीं, ये मॉड्यूल आप दोनों सोसाइटीज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कमर्शियल
और नॉन कमर्शियल सोसाइटीज के अकाउंट्स अपडेट करने के लिए, as well as you can update GST tax in Tally Prime along with the bills. So moving ahead to the next slide. Housing Society Accounting Module features. Now we'll see some special features that are developed in our Housing Society Accounting module. So coming towards the first feature, which is predefined calculation rates of income heads. आप आपके income heads के rate की calculation predefine कर सकते हैं. And here are some examples given for reference. That is maintenance, property tax, sinking fund, etc. Coming next to the second feature, auto generation of members' bill specific period wise. आप सोसाइटी मेंबर्स के बिल स्पेसिफिक पीरियड वाइज एंड ऑटो जनरेट कर सकते हैं. नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द थर्ड फीचर, ऑटो इंटरेस्ट कैलकुलेशन. आप हाउसिंग सोसाइटी अकाउंटिंग मॉड्यूल में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटो मोड पर कर सकते हैं. द फोर्थ फीचर इज प्रिंट इनवॉइस विद रिसिप्ट ऑन सिंगल पेज. आप इनवॉइसेस रिसिप्ट के साथ सिंगल पेज पर प्रिंट कर सकते हो. The next comes billing register. You can maintain all the necessary billing register transaction details in Housing Society Accounting module. Coming towards the sixth feature, that is member summary. Member summary. आप आपके हाउसिंग सोसाइटीज मेंबर्स के जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स है वो आप बहुत इजी एंड टाइम सेविंग वे में मेंटेन कर सकते हैं थ्रू दिस मॉड्यूल. द नेक्स्ट फीचर इज नॉमिनी रजिस्टर. बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल यू कैन मेंटेन बिलिंग रजिस्टर as well as nominee register in Tally Prime. The next come Form I and Form J. आप Form I and Form J के डिटेलिंग रिपोर्ट्स Tally Prime में हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, as well as you can maintain audit report in it. Moving towards the next feature, which is email on single click. By a single click only in Tally Prime, आप सोसाइटी मेंबर्स को मेल शेयर कर सकते हैं. And coming towards the last feature, but not the least, SMS of outstanding. You can share SMS of outstanding of particular members of housing societies from Tally Prime. So this was all about some amazing features of Housing Society Accounting module. And also working with this overall automate process, it will really make the Housing Society account simpler and easier. So I end here from my side. Now it's time for the live demonstration of Housing Society Accounting module in Tally Prime. So I request Ms. Anagha ma'am to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you so much, Anam. Hello, everyone. Myself, Anagha Naik. I'm here today to present you the Housing Society demo in Tally Prime. So just a minute, I will just share the screen. Okay, whether the screen is visible? Yes, Okay, okay. So अभी हम step wise देखेंगे कि how to implement हाउसिंग सोसाइटी इन टैली प्राइम. तो यहाँ पे मैंने TCP ऑलरेडी अटैच किया हुआ है. तो सबसे पहले हमें ये मेनू को अनेबल करना है. तो हम यहाँ पे जाएंगे कंपनी, F11 फीचर्स, यहाँ पे है हाउसिंग अनेबल हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल. हमें यहाँ पे यस करना है. दिस इज अ वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन. जैसे भी यहाँ पे मैंने हाउसिंग सोसाइटी मॉडल अनेबल कर दिया, आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक चेंज देख सकते हो कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी मॉडल मीन्स आपके गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन व्यू हो रहा है, दैट इज गेटवे ऑफ हाउसिंग सोसाइटी.
तो जैसे ही हम यहाँ पे गेटवे पे गए हाउसिंग सोसाइटी में, तो यहाँ पे बाइफिकेशन दिया हुआ है। जैसे हम गेटवे ऑफ टैली में देखते हैं कि मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में सेगमेंट किया हुआ है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मास्टर्स, तो मास्टर्स में यहाँ पे दिया हुआ है हाउसिंग ऑटो सेटअप। सो व्हाट इज हाउसिंग ऑटो सेटअप? स्पेसिफिक रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटी, उसके ग्रुप्स, उसके वाउचर टाइप्स, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होंगे। तो इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने यस किया, तो स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी मॉडल रिलेटेड जो ग्रुपिंग्स रहेंगे या वाउचर टाइप रहेंगे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। तो मैं अभी पहले आपको दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे आएंगे अल्टर ग्रुप, सोसाइटी इनकम एंड सोसाइटी मेंबर, ये ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप क्रिएट हुआ है। इट्स रिलेटेड टू द मास्टर्स। अब हम आते हैं वाउचर टाइप्स। सो वाउचर टाइप्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी बिल ये वाउचर टाइप है। एंड नेक्स्ट इज योर सप्लीमेंट्री बिल। तो ये जो वाउचर टाइप्स है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं कि डिटेल्स मेंटेन करना। तो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट ओनली मास्टर्स कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि अनटिल मास्टर कॉन्फ़िगर हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोसाइटी इन्फो। सोसाइटी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करनी है इफ रिक्वायर्ड। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप यहाँ पे कंपलसरी भरे। यहाँ पे मेन पार्ट है आपका नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट इज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स? जैसे कि अभी हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल विंग्स रहते हैं, ए विंग, बी विंग, तो उसको हमें मैनेज करना है। तो ये वन टाइम यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 2, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी ए विंग, बी विंग, व्हाटएवर। अगर कोई स्पेसिफिक नेम्स आपको बिल्डिंग को मेंशन किया हुआ है तो आप वो वहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हो। सो ये हो गया सोसाइटी इन्फो। नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेंसी टाइप। जैसे कि अभी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल्स का बिलिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, तो उस स्पेसिफिक बिल को हम बाइफरकेट कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे ऑक्यूपेंसी टाइप इन्फो में हम मेंशन करेंगे, जैसे फ्लैट, शॉप या यूनिट या व्हाटएवर उसके टाइप रहेंगे वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि जब भी हम स्पेसिफिक मेंबर इंफॉर्मेशन फिल करें तो वो कौन से ऑक्यूपेंसी टाइप में है वो वहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग हेड। सो अकाउंटिंग हेड यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। जस्ट मिनट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग हेड? तो जैसे हमने मेंटेनेंस बिल जनरेट करना है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ इनकम हेड्स लगेंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, तो वो हमें वन टाइम कॉन्फ़िगर करना है अंडर सोसाइटी इनकम। तो यहाँ से ही हम सिंगल क्लिक बेसिस पे अल्ट सी करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो। सो नो नीड कि आप गेटवे ऑफ टैली में जाए देन मास्टर्स क्रिएट करें, नो, आप सेम प्लेस पे उसको क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ पे हमें अलाइज डिफाइन करना है। ये फर्स्ट हम मास्टर्स क्रिएट करेंगे। हमने इसमें और एक बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इन केस अगर आपके पास एक्सेल में डेटा रहेगा, मास्टर डेटा रहेगा, तो आप सिंपल एक क्लिक बेसिस पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। पर प्रायर हमें इनिशियल कुछ मास्टर्स होते हैं वो कॉन्फ़िगर करने होते हैं, जिसके लिए हमें हर एक इनकम हेड को वहां पे उसको अलाइज डिफाइन करना है। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो हम यहाँ पे लेंगे अंडर सोसाइटी इनकम। ठीक है। नेक्स्ट हम और एक मास्टर बना लेते हैं, अल्ट सी। सो जितने भी हम इनकम हेड्स क्रिएट करेंगे हमें उसको वहां पे अलाइज कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट, अभी जैसे अभी हाउसिंग सोसाइटी में इंटरेस्ट मैंडेटरी होता है, तो हमें इंटरेस्ट का भी स्पेसिफिक
लेजर हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, दैट विल बी आल्सो इन सोसाइटी इनकम। तो बेसिक जो मुझे मेंटेनेंस में सोसाइटी बिल जनरेशन के लिए जो मास्टर्स है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ओके, अब हम टैक्स लेजर्स बना देते हैं। आपको व्हाटएवर आपको नेम कॉन्फ़िगर करना है आप मास्टर में आप क्रिएट कर सकते हो वहां पे। ओके, तो हमने बेसिक मास्टर यहाँ पे क्रिएट किया। सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंपोर्ट प्रोसेस भी कर सकते हो। अगर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशंस मुझे एक्सेल एक्सपोर्ट करनी है तो सबसे पहले मुझे एक 1 या 2 मेंबर्स का एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड रेस्ट हम जो भी डिटेल्स है वो एक्सेल से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेंबर क्रिएट कर रही हूँ फर्स्ट। तो ये अंडर आ जाएगा आपका सोसाइटी मेंबर। तो जैसे भी हाउसिंग सोसाइटी मॉडल के ऑन अ सिंपल क्लिक बेसिस आप उसके बिल्स जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज मेंटेन मेंबर इंफॉर्मेशन। सो मेंटेन मेंबर इंफॉर्मेशन में क्या है, आप देख सकते हो कि जो मैंने इनिशियल पे मास्टर्स में कॉन्फ़िगर किया था, जैसे मैंने स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन आ गया। मीन्स यहाँ पे आप उसके डिटेल्स पर्टिकुलर फ्लैट वाइज फिल कर सकते हो। कौन से फ्लो पे है वो मेंशन करो, फ्लैट नंबर क्या है, अदर कुछ डिटेल्स है तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर उसका व्हीकल है तो व्हीकल नंबर मेंशन करो। ऑक्यूपेंसी टाइप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बोथ बिलिंग्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाइफिकेट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर है या ये शॉप है। सो स्पेसिफिक इट इज अ फ्लैट। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेंसी फ्रॉम। सो व्हाट इज ऑक्यूपेंसी फ्रॉम, वो पर्टिकुलर मेंबर कब से वो पर्टिकुलर फ्लैट में रहने आया हुआ है। इट्स नॉट मैंडेटरी ऑक्यूपेंसी फ्रॉम, पर ऑक्यूपेंसी टू मैंडेटरी है वो कब है, अगर स्पेसिफिक कोई फ्लैट आपका सेल हो जाता है तो वो पर्टिकुलर फ्लैट का मेंबर डिटेल्स हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिकॉर्ड में रखना होता है। तो इसी के लिए ये ऑक्यूपेंसी टू मीन्स अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर फ्लैट सेल हो गया है तो आज अगर फ्लैट सेल हो गया तो वो पर्टिकुलर डेट वहां पे मेंशन्ड होगी, ताकि नेक्स्ट मंथ का जब भी बिलिंग होगा वो न्यू फ्लैट मेंबर के हिसाब से होगा, नॉट फॉर दी ओल्ड वन। सो अभी यहाँ पे ये कोई पे डिफाइन नहीं होगा। देन इज एरिया। एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाटएवर। फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट लेजर सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ऑल क्लिक बेसिस पे आपका जनरेट होता है, तो ये सब वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें फॉर इंटरेस्ट जनरेशन आल्सो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। अब अभी यहाँ पे हमें लिस्टिंग व्यू कर रही है जो हमने हेड्स क्रिएट किए थे। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया प्रॉपर्टी टैक्स, सो मंथली उसका जो भी अमाउंट रहेगा, ओके, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर सर्विस चार्जेस। मीन्स जो भी हमने अकाउंटिंग हेड में कॉन्फ़िगरेशंस किए हुए हैं वो वहां पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी सपोज ये पर्टिकुलर फ्लैट का मुझे ओपनिंग डिटेल्स मेंशन करना है, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर फ्लैट का ओपनिंग बैलेंस है 6500, ये टोटल अमाउंट है। पर इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स ओनली आउटस्टैंडिंग या बिल अमाउंट, ऐसा भी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी प्रीवियस इसका पेंडिंग होगा। तो हम इसको बाइफिकेशन कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे इन केस आपका बिल आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे बिल ओपनिंग एंड उसका आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो भी होगा। अगर मुझे इंटरेस्ट वैल्यू को बाइफिकेशन करना है तो यहाँ पे नेम होगा उसका इंटरेस्ट। ये मैंडेटरी यही वर्ड्स होने जरूरी है ताकि आपका जो भी नेक्स्ट बिल जनरेट होगा उसका प्रीवियस अमाउंट वो बिल में आपको शो करेगा।
ओके तो ये मैंने आपको दिखाया कि एक मेंबर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और विद उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। अभी जैसे मैं और एक मेंबर क्रिएट करती हूँ विदाउट ओपनिंग, तो यहाँ पे भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे सपोज आपकी सोसाइटी को इंटरेस्ट एप्लीकेबल है और आपने इंटरेस्ट वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, तो वो आपको एंट्री पोस्ट नहीं करेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी क्रिएट करते हो वो डिटेल्स प्रॉपरली फिल्ड हो, क्योंकि वन टाइम प्रोसेस होती है। ओके अभी मैंने और एक मेंबर बना लिया विदाउट द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया कि हमें डेटाबेस किस तरह से एक्सेल में फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। अभी गेटवे ऑफ टैली में हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट। आप देख सकते हो मैंने 2 मास्टर्स क्रिएट किए हुए हैं और जो इंफॉर्मेशन मैंने फिल किया हुआ है वो यहाँ पे डिटेल्स मुझे फिल होके आ गई। जो भी डिटेल्स है यहाँ पे हमने 25 कॉलम्स इतने दिए हुआ है क्योंकि हर एक सोसाइटी में डिफरेंट हेड्स होते हैं, मल्टीपल हेड्स होते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे ओपनिंग मेंशन किया था तो वो ओपनिंग वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे स्पेसिफिक कोई लोकेशन पे। ओके तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया कि ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट होगी और यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया। ओके मैं भी अब ये स्क्रीन स्टॉप करके आपको एक्सेल शीट शो करती हूँ जो हमने उसको इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सेल विजिबल है? यस अनका। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे लेजर नेम, पेरेंट, मेलिंग, विंग, गाला, ये जो भी डिटेल्स हमने वहां पे फिल किया था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। अभी क्या करना है, मुझे न्यू मास्टर्स ऐड करना है। जैसे मैंने बताया आप सिंपल क्लिक बेसिस पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यही डेटा कॉपी कर रही हूँ और सेम डेटाबेस में एडिट कर लेती हूँ। मींस जो भी आपके डिटेल्स रहेंगे आप उसको एडिट वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी डेटा था वो यहाँ पे एडिट करके अभी मुझे इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो जस्ट अ मिनट, मैं अभी टैली में शो करती हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है? नो। ओके जस्ट मिनट, अभी शो कर रहा है ना? राइट, यस। ओके तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो पर्टिकुलर फाइल है वो फाइल नेम कहाँ पे है, वो पर्टिकुलर फाइल आपको पाथ यहाँ पे अटैच करना है।
जस्ट अ सेकंड ना, एक्चुअली मैं रीनेम कर देती हूँ. ओके तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है उसका पाथ, जो पाथ है. एंटर एंटर. फिर हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट मेंबर्स, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने न्यू हेड्स मेंबर्स ऐड किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट मेंबर. इन केस अगर आपका डेटा आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कहीं पे वैल्यूज आपने गलती से मेंशन किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे अपडेट मेंबर डिटेल्स दिया हुआ है. मींस आपको कहीं पे मैन्युअली जाके नहीं करना, एक्सेल में आपने फिल कर दिया डेटाबेस, सिंपल क्लिक करो और अपडेट कर लो आपके मास्टर्स. तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ. इंपोर्ट डेटा, यस. ओके अभी मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर, लेजर. देखो पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर बनाया हुआ था, अब यहाँ पे आ गया थर्ड एंड फोर्थ. तो वो वही डिटेल्स आ गई जो फिल की हुई थी हमने. देखो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ. जो भी डेटा हमने एक्सेल में फिल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया. ओके तो ये वेरी इजी है, मतलब मास्टर क्रिएशंस ऑन द सिंगल क्लिक बेसिस. सो अभी हम करते हैं टैक्स कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे आप अगर आपको टैक्स एप्लीकेबल है तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर लो. सो बिफोर जनरेटिंग द बिल्स, सो वेरी फर्स्ट स्टेप होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन. इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये फर्स्ट स्टेप इसलिए होगा कि जो भी आपके प्रीवियस आउटस्टैंडिंग्स है उसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट जनरेशन, वाउचर नंबर 1. यहाँ पे हम पीरियड सेट करेंगे, कौन से पीरियड को आपको कैलकुलेट. अगर आपका मंथली बिलिंग है तो मंथली के हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के हिसाब से, हाफ ईयरली है हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस. जिस पैरामीटर में आप लोग आते हैं वो पैरामीटर के हिसाब से आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो. यहाँ पे भी देखो हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल एंड इंडिविजुअल. अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल मेंबर का कैलकुलेट करना है तो आप इंडिविजुअली मेंबर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप ऑल पे क्लिक कर सकते हो. जस्ट मिनट, एक सेकंड ना. Just hold on, I will just stop the screen for a second. Sorry everyone, due to some technical issues, she's connecting very soon. आज जैसे जो सेशन चल रहा था that is हाउसिंग सोसाइटी, काफी कुछ सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है. सो वी आर कनेक्टिंग. हाउसिंग में हम अपने बिलिंग्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डेटा कैसे अपडेट कर सकते हैं, उन सब चीजों को ये अपडेट कर रही हैं. यहाँ पे दिखाया जा रहा है बिल जनरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द हाउसिंग सोसाइटी. यस अनघा, इट्स विजिबल. ओके इट्स विजिबल. या एक्चुअली यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रिलेटेड, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक्टिवेट इंटरेस्ट पैरामीटर्स. तो यहाँ पे हमें वो अनेबल करना है.
एक्चुअल में ये जस्ट डेमो है, तो मैं आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, क्योंकि एवरी सोसाइटी में जो है ना इंटरेस्ट के पैरामीटर्स डिफर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगरेशंस हम अनेबल करेंगे जब भी आपका इम्प्लीमेंट प्रोसेस रहेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं जस्ट यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट का हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कितने पीरियड तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे अगर 18% है या 21% है, वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, और मैंने बताया कि इंटरेस्ट वाउचर्स, तो अभी जस्ट ये डमी है, तो मैंने आपको प्रोसेस सिर्फ बता रही हूँ। ओके, तो जिस इसमें पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग रहेगा और आउटस्टैंडिंग पे अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आपकी वो एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट हुई है विद अलोंग द टैक्स, क्योंकि इसको टैक्स एप्लीकेबल है। तो आपने देखा कि सिंपल क्लिक बेसिस पे हम कितने भी मेंबर्स, 500 मेंबर्स हो, 600 मेंबर्स हो, वो आप जनरेट कर सकते हो। अभी मेन पार्ट पे आ जाता है, दैट इज मेंटेनेंस बिल जनरेशन। सो मेंटेनेंस बिल जनरेशन में भी यहाँ पे ऑल एंड इंडिविजुअल दिया हुआ है। मैं कौन से पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब बिल्स आप जनरेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जस्ट मंथली कर रही हूँ। कौन से पीरियड को आपको उसका इंटरेस्ट बिल जनरेट करना है, वो उसका इंटरेस्ट ड्यू डेट क्या है, आपका क्रेडिट पीरियड क्या है, वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो और यहाँ पे आप बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरे 4 मेंबर्स थे, 4 के 4 बिल्स यहाँ पे जनरेट हो गए। अभी जस्ट मैं आपको एक मेंबर शो करती हूँ। आप देखोगे एंट्रीज में ऑल दी हेड्स आपके शो कर रहे हैं। अभी इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको व्यू करवाती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल होके आ गई, जो भी हमने डिटेल्स फिल की थी, कौन से विंग में है। अभी ये सारे हेड्स मेरे टैक्सेबल के अंदर है। अगर कोई हेड्स आपके नॉन टैक्सेबल में है तो वो यहाँ पे व्यू करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका करंट मंथ जो हमने इंटरेस्ट जनरेट किया उस रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल एरियाज। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एरियाज, जो मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस में शो किया था, आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट आप यहाँ पे शो कर देख सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका टोटल अमाउंट कितना है वो यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट, इस इनवॉइस में हमने एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई लास्ट रिसीट आपकी जनरेट हुई है तो वो रिसीट भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अभी ये बिल का हम एक अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ से कैश पेमेंट करो या चेक पेमेंट करो, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उसमें शो करेगी। अभी जस्ट मैंने रिसिट पास की। अभी मैं नेक्स्ट मंथ का जब बिलिंग जनरेट करूंगी, अभी मैं जस्ट इंडिविजुअल मेंबर का बिल जनरेट कर रही हूँ ताकि आपको मैं उसका प्रिंट शो करूँ। बिल जनरेशन, इंडिविजुअल मेंबर, अभी देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट शो किया। अभी आप देख सकते हो डाउनवर्ड डिटेल्स आपको फिल होके आ गई। यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम सो एंड सो ऑफ यूनिट 1, नंबर, अमाउंट कितना है, और यहाँ पे आपको शो करेगा। और कौन से बिल के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द बिल ओपनिंग, मीन्स यहाँ पे जो भी आप पेमेंट, अगर आपने चेक पेमेंट लिया हुआ है तो वो भी डिटेल्स आपको वहां पे प्रिंट होके शो करेगी। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री बिल। तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री बिल, जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, अगर आपको कुछ ईयरली कंट्रीब्यूट करना है या कोई फंड कलेक्ट करना है, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर मेंटेनेंस बिल, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक मैं हेड क्रिएट कर लेती हूँ। अगर मुझे रिपेयर्स के लिए अगर कोई फंड कलेक्ट करना है ऑल मेंबर्स से, तो मैं यहाँ पे एक मास्टर बना देती हूँ, रिपेयर फंड।
सोसाइटी इनकम, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमने यूज फॉर मीटर रीडिंग, इसको यस करना है। ये एक प्रोसेस है फॉर जनरेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री बिल्स। यहाँ पे मैंने वो फीचर एनेबल कर दिया। नेक्स्ट है आपके जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स को वहां पे वो पर्टिकुलर डिटेल्स कॉन्फ़िगर करनी है। जैसे मैंने एक मेंबर ओपन किया हुआ है अल्टर में, यहाँ पे भी ऑप्शन है यूज फॉर मीटर रीडिंग, यस स्पेस बार। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा हेड है और उसको कितनी वैल्यू है। यहाँ पे दो वेज हो सकता है, अगर पर फ्लैट वाइज आपको एक ही अमाउंट लेनी है तो यहाँ पे हम कंजम्पशन में लिखेंगे 1 रुपीज। अगर डिफरेंट है वैल्यूज तो हम यहाँ पे वाइस वर्सा करेंगे। तो अभी मुझे इसमें सेम अमाउंट लेनी है सबसे, तो मैं यहाँ पे करती हूँ 1। और एक मेंबर को मैं एडिट कर देती हूँ। ओके तो अभी हम सप्लीमेंट्री बिल प्रोसेस पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे है सप्लीमेंट्री बिल। ये भी सेम प्रोसेस है जैसे हम बिल्स जनरेट करते हैं। जो भी पीरियड आपको डिफाइन करना है डिफाइन करो। यहाँ पे हमने लिया कौन से लेजर का और उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने बोला था अगर मुझे कॉमन सबको है तो मैं यहाँ पे वैल्यू मेंशन करूंगी, यस ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे सप्लीमेंट्री बिल्स, मैंने 2 ही मेंबर्स को कॉन्फ़िगरेशन किया था तो मेरे यहाँ पे 2 एंट्रीज पोस्ट हो गई अंडर रिपेयर एंड फंड। ओके आपका जो इनवॉइस प्रिंट रहेगा वो सेम एज इट इज योर बिल, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ बिल ओनली, तो वही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर एंट्री पार्ट ऑन द सिंगल क्लिक बेसिस। फिर यहाँ पे हमने कुछ रिपोर्ट्स दिए हुए हैं गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे देखो हमने ऑप्शंस दिया हुआ है। फर्स्ट इज फॉर योर प्रिंटिंग, बिल प्रिंटिंग। आप बिल जनरेट करते हो एट ए टाइम, आपको अगर बिल्स प्रिंट आउट निकालनी है तो हम यहाँ पे ऑल बिल प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे कॉन्फ़िगरेशन करके आप प्रिंट ले सकते हो। सेम एज योर इंडिविजुअल प्रिंटिंग, इंडिविजुअल मेंबर्स का अगर मुझे बिल्स का प्रिंट आउट निकालना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर रिपोर्ट्स डिस्प्ले। यहाँ पे है मेंबर रजिस्टर, जो भी मेंबर में हमने इंफॉर्मेशन फिल की थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगी इन अ रिपोर्ट। सेम बिल रजिस्टर, बिल रजिस्टर में जो स्पेसिफिक पीरियड में हमने डेटा एंट्री किया हुआ है वो पीरियड आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन शो करेगी। देखो जो भी आपने बिल्स क्रिएट किए हुए उसका। नेक्स्ट इज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, मेंबर समरी। इंडिविजुअल मेंबर वाइज आप उसकी समरी व्यू कर सकते हो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, डेबिट क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग कितना है। देन इज नॉमिनी रजिस्टर। ये अगर इंफॉर्मेशन आपने आपके मास्टर में, मेंबर मास्टर में फिल किया रहेगा तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नॉमिनी रजिस्टर की व्यू हो जाएगी, तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। सेम फॉर्म जी एंड फॉर्म आई, यहाँ पे भी सेम है। अगर आपने आपके मास्टर्स में कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो ये रिपोर्ट आपकी फिल होके आ जाएगी। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपने कोई भी रिपोर्ट मेंशन किया है तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगी। ओके थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, राज मैडम। Thank you, Ananga. It was very nice presentation and nice live demonstration by you and Anam also, right? Thank you participation for attending this sessions. जो भी people, जो भी लोग late join हुए होंगे, ये session, हमारा ये training session YouTube पे next week तक upload हो जाएगा. So please do subscribe, do like on our channels. So we'll take a short recap by Mr. Dhandaria. Mr. Dhandaria, are you there? Yes. Yeah, yes, sir. Yeah. Hi, good evening, everyone. I am Bhagwati Dhandaria from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So, this why housing society modules.
हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल्स की जरूरत क्यों है? फर्स्ट आई विल टॉक ऑन दिस पॉइंट. What is the challenges? Why we are not? Why we can't do the accounting in the normal accounting in the tally of the housing societies? Actually, housing societies के अपने एक specific requirements है. नॉर्मल अकाउंटिंग जो होती है उससे काफी डिफरेंस है हाउसिंग सोसाइटी का मॉडल. यहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक बिलिंग प्रोसेस है, स्पेसिफिक उसके प्रिंटिंग्स हैं. तो ये सभी चीज़ें जो होती है जिसके कारण हमें अलग से एक मॉड्यूल बनाना होता है, हमें अलग से एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. तो चूंकि वी आर डेवलपिंग टैली अकॉर्डिंग द बिजनेस नीड, अकॉर्डिंग द इंडस्ट्रीज नीड, अकॉर्डिंग द यूजर नीड, अकॉर्डिंग द कस्टमर नीड. सो उस केस में हमारे पास काफ़ी डिमांड थी हाउसिंग सोसाइटी की, जहाँ हमने हाउसिंग सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को काफ़ी ढंग से समझा, जहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ द सिनेरियो होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ द कैटेगरीज होती है, वेरियस टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इनकम्स होती है, उसके बाद में उसके कैलकुलेशंस भी होते हैं. ऑक्यूपेंसी की डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी होती है, उसके बाद में लेट फाइन, इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए वाटर चार्जेस, कमिटी हॉल चार्जेस, like we are talking on the supplement bill also, and in terms of the water bills, various type of the head होते हैं जिसके अपने एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस होते हैं, और every society have a different calculations, different way. So इसके हिसाब से एक मॉडल की जहां जरूरत थी उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा हाउसिंग सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया, और उसके हिसाब से ये मॉडल को हमने बनाया, जो आज की डेट में 200 प्लस सोसाइटीज में ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल लोकेशन में हमारा यूज हो रहा है. जहां हमें हाउसिंग सोसाइटी में नॉर्मली किसी हाउसिंग सोसाइटी में फॉर एग्जांपल 1000 मेंबर्स हैं. अब उस 1000 मेंबर्स का अगर हमें बिल बनाना है, बिल तो सेम ही बनना है, जो एजीएम में फिक्स हो गया प्राइसिंग, वो सभी प्राइसिंग ही सिर्फ फिक्स होने हैं, इस डेट से इस डेट तक यही प्राइसिंग होने वाले हैं. तो फिर वो 1000 बिल बनाने के लिए हमें टैली में जाके नॉर्मली 1000 टाइम वाउचर फीड करने होंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल्स में ऐसा नहीं होगा. यहाँ क्या होगा, अगर आपका मंथली बिलिंग है, क्वार्टरली बिलिंग है, हाफ ईयरली बिलिंग है, जो भी सिस्टम है आपका, आपने प्री डिफाइंड कर दिया है, एक सिंगल क्लिक किया, आपके सबके बिल एक साथ जनरेट हो गए. आपकी कोई लेट फाइन चार्जेस का आपको बिल बनाना है, एक सिंगल क्लिक किया, जितने लोगों को लेट फाइन चार्जेस लगने चाहिए थे एज पर द पैरामीटर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, लाइक इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसा हमने दिखाया. तो सेम वे आपने सप्लीमेंट्री बिल्स के कुछ हुए, रिपेयर चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस, लाइक कोई इवेंट कोई आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसके लिए कुछ आप करेक्शन कर रहे हो, तो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन ऑल्सो मेंटेन, जो एक सिंगल क्लिक में सभी लोगों को चार्जेस ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो जाएंगे, बिल जनरेट हो जाएंगे, और सिंगल क्लिक पे एक बार में प्रिंटर में आपके 500,000 जितने भी बिल होंगे वन टाइम में आपके प्रिंट हो जाएंगे. अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिल नहीं मिला, आप वहां पर मैन्युअली भी प्रिंट करके एक बिल को दे सकते हैं. इंडिविजुअल बिल भी आप जनरेट कर सकते हैं और इंडिविजुअल बिल को प्रिंटिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग आ जाती है कलेक्शंस. तो कलेक्शन टाइम टू टाइम डिफरेंट सिनारियो में लोग अलग अलग तरीके से पेमेंट देते हैं. पीपल आर डूइंग एनईएफटी, कैश एंड चेक्स एंड वेरियस टाइप ऑफ द वे, पेटीएम एंड एक्सेट्रा. तो आप उसके हिसाब से पेमेंट रिसीव करेंगे और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी. तो ये सभी चीजों को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया गया है. इसके अलावा मीटर चार्जेस में, मीटर रीडिंग के हिसाब से अगर आपके कोई चार्जेस हैं तो आप रीडिंग के हिसाब से भी चार्जेस कर सकते हो. वाटर मीटर रीडिंग के चार्जेस भी हैं, तो वो रीडिंग के हिसाब से भी आप क्रिएट कर सकते हो. इसके अलावा गवर्नमेंट को जो कंप्लाइंस है, आई और जे रजिस्टर्ड जो भी फॉर्म्स होते हैं, शेयर होल्डिंग वगैरह जो होती है, ये सभी चीजों को भी यहाँ आप कवर कर सकते हो. तो इन सभी चीजों को यहाँ पर कवर कर पाते हैं. इसके साथ साथ चूंकि आज का समय डिजिटल हो गया है, तो हमें सबको एक एक बिल जा करके पुटअप करने की जरूरत नहीं होती. तो हम एक सिंगल क्लिक पर वो 500,000 जो भी मेंबर्स हैं आपके सोसाइटी में, 100 मेंबर्स हो, 500 हो, 1000 हो गए, एक क्लिक पर उन सभी को एक मेल चला जाएगा. हाउसिंग सोसाइटी बिल जनरेट किया, क्लिक किया, मेल चला गया. आप चाहते हो उनको व्हाट्सएप चलाया, तो व्हाट्सएप मॉड्यूल वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट.
आप चाहते हो कि मैसेज सबको चला जाए, मैसेज चला जाएगा। आप चाहते हो कि जितने लोगों के आउटस्टैंडिंग बाकी है सिर्फ उनको ही मैसेज जाना चाहिए, यू कैन डू। उनको ही रिमाइंडर मेल चला जावे, यू कैन डू दिस। तो ये सभी चीज़ों को बहुत ही इजी गोइंग करने के लिए बहुत ही सोसाइटी मेंबर्स, क्योंकि सोसाइटी की पार्ट होते हैं, सोसाइटी के जो भी सेक्रेटरी एंड जो भी लोग होते हैं, ट्रेजरर वगैरह, वो दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड उनके पास भी अपना कुछ काम होता है, तो दे कांट डू दैट दिस ऑपरेशन वर्क डे टू डे, वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो उस केस में आपको ये सॉफ्टवेयर काफ़ी आपका टाइम का सेविंग करता है, स्टैंडर्ड एंड सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेटिक पूरा इंफॉर्मेशन ऑन सिंगल क्लिक पे मिल जाता है, जिससे आपकी टाइम काफ़ी सेविंग हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कल आपको आपका वाटर टैंक मेंटेनेंस में जाने वाला है 4 to 8 टाइम, 4 o'clock to 8 o'clock। तो आप यहीं से उसको एक टोटल मेंबर्स को एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं थ्रू आउट द मेल और मैसेज एंड व्हाट्सएप, थ्रू आउट द टैली सॉफ्टवेयर। ये सभी चीज़ों को भी आप इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। तो आप लोगों में से किसी को भी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो गए, कोई भी रिक्वायरमेंट हो गए, तो आप हमारे नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द राजलक्ष्मी पीपल्स। आप हमारे लोगों को कनेक्ट कर दीजिए जिनसे आप कनेक्टेड हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर नंबर्स हमने डाल के रखे हैं चैट बोर्ड में, यू कैन कनेक्ट विद इन द चैट बोर्ड में जो नंबर डाले हुए हैं उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एंड माय नंबर इज आल्सो पॉपुलेट इन द चैट बोर्ड। तो आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअली भी कुछ क्वेश्चंस हो गए या इंडिविजुअली आप डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें या आपके सोसाइटी कमिटी के लोग देखना चाहें तो वी कैन अरेंज अ डेमो फॉर यू। सो ये जो हमने आपको सेशन शो किया है ये रिकॉर्डेड होता है और ये सेशन हमने जो लोग छूट भी गए हैं या आपके कोई कलीग्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कोई देखना चाहें तो दे कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दे कैन आल्सो सी द डेमो नेक्स्ट वीक इन द आवर यूट्यूब चैनल्स। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर हमने आपको काफ़ी मॉड्यूल्स हमने सेशंस पहले भी किए हुए हैं। जो सभी मॉड्यूल्स के सेशंस वहाँ रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेगी, एडिशनल एडवांटेज मिलेंगे। टैली के हर एक छोटे बड़े सभी मॉड्यूल्स को हमने कवर किया है पिछले 2 सालों में। तो वो सभी मॉड्यूल्स आपको सभी सेशंस वहाँ पर हैं टॉपिक वाइज। तो आप टैली में भी अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है तो जस्ट लाइक आपको डिजिटल एकेडमी हमने वहाँ जनरेट कर दी है, पूरा का पूरा टैली के हर एक मॉड्यूल्स हर एक टॉपिक के ऊपर आपका सेशंस वहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो आप टैली को भी वहाँ से आप सीख सकते हो। यह टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, यू गेट द एडवांटेज। तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं और ये जितने भी सेशंस होते हैं ऑन डिमांड होते हैं। तो आपकी जितनी डिमांडेड आती है आप ऑडियंस में से जिन लोगों की जो डिमांड आती है तो जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उस सेशन को हम लोग कवर करते हैं। तो आपकी तरफ से भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिक कोई टॉपिक हो गए तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे अकाउंट मैनेजर जो राजलक्ष्मी से कनेक्टेड है उनको आप बता सकते हैं, तो हम लोग उन सब चीज़ों को देखेंगे और उसके हिसाब से आपके हिसाब से हम लोग सेशंस भी अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है, कोई भी मॉड्यूल्स कोई भी कस्टमाइजेशन करना है, कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन करना है सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर में या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करना है, तो दैट ऑल थिंग्स आर आल्सो पॉसिबल। तो वो सभी चीज़ों के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप इन सब चीज़ों का एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टाइम टू टाइम काफ़ी ऑफर चलते रहते हैं, जैसे टैली ऑन क्लाउड। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लोगों को क्लाउड पे टैली चाहिए और कहीं से भी वो एक्सेस करें, इंटर करें, सब ट्रांजेक्शन्स करें, किधर भी बाहर गए हो 24/7 उनको चाहिए। तो वो टाइप की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वेरियस टाइप ऑफ द वर्टिकल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, वेरियस टाइप ऑफ द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग एंड वी आर ऑफरिंग लॉट ऑफ द ऑफर्स इन द गणपति एंड दशहरा। सो आप हम लोगों से कनेक्ट करके उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। यू विल गेट द एडवांटेज ऑल्सो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड राज यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। काफी एडिशनल पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं जो लोगों को काफी अच्छे से क्लैरिटी देगा हाउसिंग सोसाइटी पॉइंट्स पे, कंसेप्ट्स पे। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन फॉर द क्वेश्चन सेशंस। अगर आप में से कोई भी क्वेश्चंस कुछ करना चाहता है, कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क और यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन अ चैट बॉक्स आल्सो।
Yeah, Raj, I have one questions. Okay. Mr. Binod Shukla asking what is the price. Mr. Shukla, आप हमारे नंबर्स पे कनेक्ट कर लें. जो भी प्राइसिंग होंगे, आपको जो मॉड्यूल्स जिस हिसाब से चाहिएगा उसके हिसाब से हम लोग आपको कॉन्फ़िगर करके दे देंगे. उसके जो प्राइसिंग होंगे वी कैन डिस्कस इन द 1-to-1 सेशंस एज पर योर रिक्वायरमेंट वी कैन डू. और anyone you have any questions, so please आप चैट बॉट में डाल दीजिए ताकि हम आपको उसका आंसर कर पाएं. Mr. Ravi, I think Mr. Ravi raised the hand, I think. Mr. Ravi, we are unable to give the access today. So please put the, your questions in the chat box, please. I think, Raj, we have not any another queries. Yeah, Mr. Prakash Doshi. Mr. Prakash, send a link for the view session again. Yeah, definitely, sir. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, लिंक डाल के रखे हैं, क्योंकि ये लिंक आपको आफ्टर द सेशन, ये सेशन क्लोज होने के बाद में आप इस लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. प्लीज आप इमीडिएट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वहाँ पर कभी भी देखना चाहें, कोई भी टाइम देखना चाहें, आप YouTube चैनल पर इस सेशन को देख पाएंगे. Mr. JS is asking module of the share investment. Yes, Mr. JS, we have a module. आप शेयर इन्वेस्टमेंट या कोई भी अदर मॉड्यूल्स के बारे में भी आप जानकारी लेना चाहें तो आप हमें नंबर पर फोन करें. मैंने ये नंबर यहाँ पर चैटबॉट में डाल दिया है, तो वी कैन डिस्कस योर रिक्वायरमेंट. वी हैव ए मॉड्यूल्स, so we can discuss on that modules. And Mr. Shukla is again asking pricing is for modules or is inclusive of the Tally subscription. No, Shukla ji, this is not including in the Tally subscriptions. This is a complete separate customized module जिसके लिए आपको एडिशनल जो भी कॉस्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ज होगी. एंड वी हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर जयस अगेन. या सर, मैंने आपको यही बात बोली कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल गेन आप वहां पर कर पाएंगे, तो आप एक बार हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए. मैंने आपको नंबर यहाँ डाला हुआ है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, डेफिनेटली हम लोग उसको आपको दिखाएंगे. एंड मिसेस टैली बैंक, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मॉड्यूल? सर, अगेन टेल यू कि आप प्राइसिंग के लिए कुछ भी कन्वर्सेशन करने हो, प्लीज कनेक्ट विद डायरेक्टली, बिकॉज देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ मॉड्यूल्स. हमने एक ही क्लब करके आपको मॉड्यूल्स को दिखाया है सोसाइटी मॉड्यूल्स में, तो एज पर नीड दैट प्राइस इज वेरी. तो वो प्राइसिंग हम आपको 1-to-1 आपसे डिस्कस करके हम आपको कॉस्ट का बता देंगे, क्योंकि हर एक चीज कस्टमाइज होती है आपके हिसाब से. वी कैन डू दैट. एंड या डेफिनेटली आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर दें, और जो आपको मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप उस नंबर पर शेयर कर दें. डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू द मॉडल्स. एंड फ्रॉम डेल आईडी डेल व्हाटएवर आईटी कनेक्ट विद द टीडीएस कंप्लायंस. सर, मुझे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ. ये क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर लें, ताकि आपको टीडीएस कंप्लायंस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड टीडीएस कंप्लायंस में आपको क्या चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ द टीडीएस, लॉट ऑफ सेक्शन आर देयर, तो उस पर हम लोग 1-to-1 बात कर लेंगे. एनीथिंग एल्स फ्रॉम ऑडियंस साइड? और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? I think Raj. I think it's clear, sir. Yeah. So we can wind up the sessions today. Yes. Yeah, please do subscribe our YouTube channels for getting more and more videos and everyday updates. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Bye bye.